Now today we will going to take some difficult problem of excess capital, and then we will start with full-fledged problem of piecemeal distribution, and all these things will be given to you online, so don't worry about it. You just put your concentration here, and whenever Amar, can you able to mute yourself? Thank you very much. Yes. So there is no need to write anything. Everything is available online, and I will provide you all the links and everything. And whenever you feel comfortable, whenever you feel it is very important thing, you can take a screenshot of those things. I think most of you are able to join with your mobile phone, and some are doing with the laptop. But whatever the mode you have, there is no problem in it. Now today the content of the lecture is we will going to solve 2-3 difficult problem on excess capital, how to calculate. Then we will going to solve one problem of full length on piecemeal distribution of cash, which includes a statement of piecemeal distribution of cash. And the third part of the lecture will discuss about some problem which you have to try by yourself. Okay, you can take a screenshot of those thing and you will try at your home. Meanwhile, in the next lecture definitely I will going to solve that problem, but meanwhile you can also try. Let's start with illustration number 1. I hope in the last lecture whatever problem we have did, you able to recollect what we have done. We have followed a 6 step of excess capital, which start with calculation of unit value, then we calculated proportionate capital, and then we calculated excess capital by deducting excess proportionate capital from unit value or actual capital. This is how we followed the step second times to get a absolute or ultimate excess capital. Now let's see this illustration. This is quite difficult compared to the last one. पहले के जो दो हमने किए थे वो शायद आपको ध्यान में होंगे, नहीं होंगे तो जो बच्चे मिस आउट कर गए लास्ट लेक्चर, दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल्सो. सो माई प्रॉब्लम इज ABC are 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:2:1. Their capital balance are ₹60,000, 48,000 and 30,000 respectively. General reserve with the company is of ₹30,000 at the time of winding up, and company also shows a debit current balance of the partners B and C. So A don't have any debit current balance, only B and C have their current debit balance of 2,000 and 1,000. Determine excess capital. Is it okay? Now let's see the problem once again. ABC are 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their capital balance are 60,000, 48,000, 30,000, and company also have a general reserve of 30,000 and debit balance of B and C 2,000 and 1,000 respectively. Now moving to our Excel sheet just to solve this problem and how we can able to calculate excess capital. Now can you able? अभी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बड़ा करूँ इसको या इतना चलेगा? नहीं सर, थोड़ा zoom करो ना. Now it is okay? Oh yeah, much better. Okay. Now we have only actual capital with us. We don't have adjusted capital. Actual capital which is given in a problem is of ABC. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, then we have B and then we have C. Okay. Now just to see the actual capital, we again have to go to the problem itself. Where is the problem? Yes. So in the problem we have capital of 60,000, 48,000 and 30,000. So I have written here 60,000, 48,000 and 30,000. Now as I said, we have to find out adjusted capital because there are other things which is also available at the time of wind up. क्या था? We have to add general reserve. General reserve is what beta? It is accumulated profit, past profit of the company. So we have to add general reserve. How much general reserve we have with us? 30. 30,000. So Total 30,000 30,000. divided by 6.
Why 6? Because 5,000. total unit profit is how much? 6. Okay, so 30,000 divided by 6 comes to 5,000. 5,000 multiplied by 3 for A comes to 15,000. 15. Here it will come 10,000, and here it will come 5,000, because their profit sharing ratio is what, beta? 3:2:1. Okay, and now there is also one more thing which is there at the time of winding up company, that is debit current account of partner B and C. A का नहीं है. So again we are moving to the Excel sheet. Now debit balance of current account is always be less. अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या होता बेटा? इट विल बी एडेड. रिमेंबर वन थिंग, पार्टनर्स अकाउंट आइदर इट इज अ कैपिटल अकाउंट और आइदर इट इज अ करंट अकाउंट, इट इज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. If it is having debit balance, that means you have to pay to the company. So here less current account balance of A we don't have anything, for B we have 2,000 and for C we have 1,000. Now we will going to make a total of it. ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, ये तो यहाँ पर जो आएगा उसको हम कहेंगे एडजस्टेड बैलेंस. एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस इज 60,000 प्लस 15,000. चालू है, जरा बंद करेंगे अपना माइक. मृदुला प्लीज. Yes, thank you. So here it comes 75,000. Now here 48,000 plus 10,000, 58 minus 2 comes to 56,000. Similarly for C, 30 plus 5, 35,000 minus 1, it comes to 34,000. Now we got adjusted capital balance. Now everything will be done on the basis of adjusted capital, because the actual capital was something else and we have further balance which is available at the time of winding up a company, so we have adjusted against actual capital. There are two methods. जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, मनोज सर पढ़ाएंगे, तो there are two methods at the time of dissolution or a partnership firm follow two method, fixed capital method और fluctuating capital method. जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेगी कंपनी, एट दैट टाइम यू ऑलवेज हैव अ करंट अकाउंट विद अ कंपनी. बट वेन एवर कंपनी फॉलो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, at that time you only have actual capital, because whatever profit which earn company during a year will be added back to the capital. But in fixed capital method they will not touch your capital, it will remain as it is. If company make a profit or loss, it will be adjusted in current account. Is it okay? Now so we got adjusted capital balance of 75,000 of A, 56,000 of B and 34,000 of C. Now we will go to follow our steps to calculate excess capital. First step is what? To calculate unit value. For calculating unit value we have a formula, actual capital or adjusted capital. So here we will not take actual capital, we will take adjusted capital. Okay, divide by individual PSR. So actual capital is 75,000, sorry, adjusted capital 75,000 divided by 3 comes to 25,000, whereas 56 for B, 56,000 divided by 2 comes to 28,000, and for C it will come 34,000. Now step number 2 says we have to calculate proportionate capital, and the formula for calculating proportionate capital is smallest unit value SUV multiplied by individual PSR. So here come on, tell me which one is smallest one among all these three. ये तीनों में से कौन सा छोटा है यूनिट वैल्यू? ए का. वेरी गुड. सो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थिक लाइन से हाईलाइट कर देंगे. सो ए विल बी अ योर बेस, A will be your base. So proportionate capital says smallest unit value multiplied by individual PSR. So 25,000 multiplied by 3 comes to
75,000. For B, 25,000 multiplied by 2 comes to 50,000, and for C it will come 25,000. Now in the third step we able to calculate, or we can able to determine excess capital, and the formula for excess capital is actual capital minus proportionate capital. So actual और adjusted capital, sorry यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा adjusted, because now you don't have actual capital, we have converted our actual capital into adjusted capital. So adjusted capital minus proportionate capital 75,000. देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप कल की तरह ताकि आपको समझ में आए. 75,000 divided by 75,000 comes to 0. Now here 56,000 minus 50,000 comes to 6,000, and 34,000 minus 25,000 comes to 9,000. So this is called as excess capital. But now here we got a excess capital of two partner, but we want a excess capital of only one partner. So again we will going to follow this step. Again we will follow these three steps to get ultimate or absolute excess capital. Now here we will going to consider excess capital. So again we have to calculate unit value, and for that purpose now we will going to consider what? Excess capital. So now unit value formula is excess capital divided by individual PSR. So for A it will come 0. For B 6,000 divided by 2 comes to 3,000, and for C 9,000 divided by 1 comes to 9,000. This is a second time unit value we got. Now again we have to calculate proportionate capital. Second proportionate capital's formula remains same, smallest unit value multiplied by individual PSR. So here smallest value is beta 3,000. So 3,000 will be taken as a base value. So 3,000 for A it will come 0. 3,000 multiplied by 2 comes to 6,000 for B, and 3,000 multiplied by 1 comes to 3,000 for C. Now here we will got ultimate Excuse me, sir. Yeah, So can you please repeat this proportional capital part? proportionate capital. Okay. Yes, First sir. of all, try to understand what is the proportionate capital. Proportionate capital means what? Capital contribution in the proportion of PSR, in the proportion of profit loss sharing ratio. ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अनइवन है इनके कैपिटल, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि इनके कैपिटल को उस प्रकार लेके आए ताकि जितना ये प्रॉफिट अर्न कर रहे उतना ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो. तो मुझे पता लगा पहले यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में कि तीनों का आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल अलग अलग है. मिस्टर ए पेइंग 25,000 फॉर सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉफिट, वेयर एज मिस्टर बी पेइंग 28,000 फॉर सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉफिट, और सी कितना दे रहा है 34,000. सो डेफिनेटली सी ज़्यादा पे कर रहा है एक यूनिट प्रॉफिट के लिए, तो हमने उसको प्रोपोर्शनेट करके रखा. मतलब एडजस्टेड इतना था लेकिन एक्चुअल कितना होना चाहिए था, प्रोपोर्शनेट कितना होना चाहिए था. इफ़ वी कंपेयर विद PSR तो पता लगा कि ए का कितना होना चाहिए था 75,000 एंड बी का कितना होना चाहिए था 50,000, एंड शी वुड हैव पेड ओनली 25,000 बट सी पेड 34,000. सो ही पेड मोर. तो हाउ मच मोर ही पेड 9,000, और बी ने कितना पे किया था 6,000. नाउ वी गॉट अ 2 एक्सेस कैपिटल, लेकिन हम जब पे करने लगेंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में तो दोनों एक साथ नहीं पे कर पाएंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्सेस किसने दिया हुआ है, सो दैट एट द टाइम ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश वी विल गोइंग टू पे टू दैट पर्सन हु रियली पेड एक्सेस कंपेयर टू अदर 2 पार्टनर्स. तो हमने दोबारा वही स्टेप फॉलो किया. तो दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर यूनिट वैल्यू अगेन, now instead of taking adjusted capital now we have taken excess capital, क्योंकि बैलेंस तो ये दो बचे ना, इन दोनों में से कंपेयर करना है. सो नाउ 6,000 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 3,000 एंड 9,000 डिवाइड बाय 1 क्या बेटा इनके इंडिविजुअल PSR है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय इंडिविजुअल PSR. जब भी डिवाइड करोगे आप इंडिविजुअल PSR से देखोगे, ठीक है. सो 6 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 3,000. Yes. 9 divided by 1 comes to 9,000. So straight away we will got a unit value. अब देखो B का यूनिट वैल्यू 3,000
और सी का यूनिट वैल्यू 9000 बड़ा अनफेयर है, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट. सो नाउ वी हैव टू कम टू अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. कितना होना चाहिए था? अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 तो कितना होना चाहिए? मिस्टर बी को 2 यूनिट मिल रहा है प्रॉफिट का, तो उसको 2 यूनिट के पैसे देने चाहिए, और सी को 1 यूनिट मिल रहा है तो 1 यूनिट के पैसे देने चाहिए. सो 1 यूनिट के कितने पैसे होते हैं बेटा? 3000. सो बी इज चार्जिंग 2 यूनिट, सो ही सपोज टू पे हाउ मच? 6000. सिमिलरली सी इज ओनली चार्जिंग 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट, तो 1 यूनिट का कितना कॉस्ट है? 3000. सो इट कम्स टू 3000. नाउ वी गॉट एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल. ए का तो पहले से जीरो था, बी का भी जीरो आ गया. क्यों जीरो आ गया? सीधा फॉर्मूला एक्सेस कैपिटल माइनस सेकंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल. एक्सेस कैपिटल क्या था बेटा? ये 2 एक्सेस कैपिटल थे. ठीक है, ये जो 2 एक्सेस कैपिटल थे इसको आपने किससे माइनस कर दिया? सेकंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल से. सो 6000 माइनस 6000 कम्स टू 0. 3000 माइनस 9000 कम्स टू कितना आया? 6000. 6,000. Thank you, sir. तो यहाँ पर आपका क्या आ गया बेटा? ये अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल. दिस इज as simple as you can able to calculate. It is a very simple to calculate. Only difference is that in this problem is here we have general reserve and current account, and we have adjusted our capital. करंट अकाउंट डेबिट. अगर ये दोनों नहीं होते तो हम एक्चुअल कैपिटल को ही एडजस्टेड कैपिटल पकड़ते. सो व्हेन यू डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट in a partnership firm, at that time actual capital will be considered as a adjusted capital or vice versa. But when you have a adjustment such as general reserve, current account balance, or profit and loss account, or there are many things, okay, which can directly contributed, or drawings like kind of a thing which can be directly deducted from capital account. At that time there is a difference between actual capital and adjusted capital. So after doing all the adjustment of all the adjustment which is provided to us, it will be called as adjusted capital. ठीक है, is this clear? यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी, so that if no then I can move further. सर ये सम को थोड़ा जूम आउट करो ना, तो स्क्रीनशॉट लेना था. मैं लिख लिया होता है, स्क्रीनशॉट करेंगे बैठ. ठीक है ना भाई? स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद उसको आप जूम कर सकते हो. जूम आउट तो सर जूम आउट करो. again I am sharing a video, so in video also you can able to see. Is it okay? Shall I move further? यस सर. Yes. Now हाँ सर. going for next second example. जरा second example देखिए. A, B and C sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. अभी यहाँ पर ये देखना है कि इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज. बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट में क्या दिया बेटा? ये सिंपल वाला प्रॉब्लम है. यहाँ पर आपने लाइबिलिटी में सिर्फ कैपिटल लाइबिलिटी, आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं दिया, इंटरनल लाइबिलिटी नहीं दिया. कौन सी लाइबिलिटी दी है? सिर्फ कैपिटल लाइबिलिटी. सो वी हैव 3 पार्टनर्स ABC 30, 30, 20, 80,000 उसकी लाइबिलिटी थी. वही लाइबिलिटी आपके कहाँ पर आ जाएगी? असेट साइड में. ठीक है, सो वी ऑलवेज नो बैलेंस शीट मीन्स बोथ द साइड ऑफ अ शीट शुड बी बैलेंस, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट. तो जितना आपका कैपिटल होगा उतना ही आपका असेट होना चाहिए. तो 80,000 जो आपके पास आएगा, उस 80,000 को आपने क्या लिया होगा? क्या तो असेट खरीदा होगा, या आपने अपने बैंक में रखा होगा, या आपने उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट किया होगा. सो दैट 80,000 will be your asset and that will be your liability also. Now see further, the partnership is dissolved and the asset realized as follows. asset एक साथ realize हो, धीरे धीरे होता है. पहले realization में आपने 11,000 रुपये के asset बेचे. कितने के बेचे? 11,000. in the second realization you got 15,000 and in the final realization you got how much? 24,000. ठीक है, so total how much you got? 36 प्लस 24, 60,000 मिला और 80,000 आपको पे करना था. तो इन शॉर्ट 20,000 का रियलाइजेशन लॉस है. ठीक है, अब ये देखिए इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. पहले हम यहाँ पे चलते हैं. ठीक है, पहले ये सारी चीज़ को मैं रब कर देता हूँ.
यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये 2 सेल निकाल देते हैं, डिलीट एंटायर रो। ओके, ये भी एक रो हम निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, उसको आप कैसे रेशो में कन्वर्ट करोगे। क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/6। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है बेटा? 3:2:1 है आंसर। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट नंबर क्या है? 6 है, ठीक है। सो टेकिंग 6 एज अ बेस वैल्यू, तो मैंने क्या किया, 6 को बेस वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए नीचे कितना है बेटा? 2 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना लिया हमने? 6 लिया ना बेटा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना लिया बेटा हमने? 6 लिया। अभी 6 को डिवाइड बाय 2 से किया तो कितना है बेटा मेरा आंसर? 3, ठीक है, इस 2। अब यहाँ पे देखिए 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिला बेटा मेरा? कितना मिला आंसर? 2 और 6 डिवाइड बाय 6 कम्स टू 1 1। तो आपका रेशियो कितना हो गया बेटा? 3:2:1। लेट्स सी दिस वंस अगेन। जब आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया तो यू ऑलवेज हैव टू टेक अ हाईएस्ट वन एज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? हाफ। 6 का हाफ कितना होता है बेटा? अगर आपने मैक्सिमम 6 लिया, 6 का हाफ कितना हुआ? 3। तो 3। सीधा आपको वैसे 3 मिल गया रफ कैलकुलेशन के हिसाब से। और उसी तरह 1/3, 6 का 1/3 कितना होगा बेटा? 2। सो आपको आपका PSR मिल गया 3:2:1। नाउ वी हैव टू सी द कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस इज 30, 30, 20। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक्चुअल कैपिटल कितना था बेटा? 30,000 एंड 20,000, ठीक है। एंड माई PSR इज 3:2:1, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से मुझे सीधा क्या निकालना है? अच्छा, मैंने ये यहाँ पे डिलीट मार दिया है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्टेप याद रखना। स्टेप जिस दिन भूल जाओगे उस दिन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम के साथ में। प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या बेटा? वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। एक्चुअल कैपिटल पहले टाइम आप लोगे तो क्या आएगा? एक्चुअल कैपिटल डिवाइड बाय इंडिविजुअल PSR। सो 30,000 डिवाइड बाय 3 कम्स टू 10,000। सेकंड में फॉर B 30,000 डिवाइड बाय 2 कम्स टू कितना आ रहा है? 15,000. 15,000। वेरी गुड। एंड 20 डिवाइड बाय 1 कम्स टू 20,000। 20,000. ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ पे 10,000 क्या बेटा? आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू 30,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स टू 20,000 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कम्स टू 10,000। यहाँ पर आपका क्या आया बेटा? 0। यहाँ पर आपका क्या आएगा? 10,000। 20,000 डिवाइड माइनस 30,000 कम्स टू 10,000 एंड 10,000 माइनस फ्रॉम 20,000 कम्स टू 10,000। दोनों का इक्वल आया एक्सेस कैपिटल, लेकिन दोनों का इक्वल नहीं है बेटा। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज उनके PSR में फर्क है, 2:1 है। ठीक है, अब देखिए फर्दर हम उसको क्या करेंगे, वापस से कैलकुलेट करेंगे अगेन यूनिट वैल्यू। सो 10,000 डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला आपको पता है यूनिट वैल्यू का, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय PSR। सो इट विल कम 5,000 फॉर B
and 10,000 for C. Now again 5,000 is smallest unit, so 5,000 multiplied by 2 Two. individual PSR comes to 10,000. 10,000. Here it will come 5,000. 5,000. So my absolute Zero. excess capital is 5,000, 5,000. which I have to pay to Mr. C. C. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, एक्सेस कैपिटल आ गया. अब देखो हम इसको पे कैसे करना है. सबसे पहले हम किसको पे करेंगे बेटा? सबसे पहले हम 5,000 को पे करेंगे, उसके बाद में हम पे करेंगे 5,000 और 10,000 की तरह, और लास्ट में हम एज पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल गैप से पे करेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट, पहली बार करवा रहा हूँ, विच इज़ नोन एज piecemeal distribution of cash. This statement is known as piecemeal distribution of cash. इस तरह कॉलम बनता है बेटा, कैश का कॉलम बनता है और लाइबिलिटी का कॉलम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा तो एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, अगर इंटरनल लाइबिलिटी और कॉलम ऐड हो जाएगा, लेकिन इट शुड बी एडेड एज पर द प्रायोरिटी. तो पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा? एक्सटर्नल. तो यहाँ पर एक्सटर्नल का पहले आ जाएगा, फिर इंटरनल का आएगा, फिर कैपिटल 1 2 3. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बैलेंस कितना था हमारे पास में. कैश बैलेंस हमारे पास नील 0 था. ए का कितना था बेटा? 30,000. बी का कितना था? 30,000. और सी का कितना था? 20,000 हमको पे करना था. ठीक है, ये बैलेंस था हमारे पास, कोई पैसा नहीं बांटने के लिए. अब हमको ये देखना है कि पहला अमाउंट कितना रियलाइज हुआ. फर्स्ट रियलाइजेशन वॉज ऑफ रुपीज़ 11,000, यानी 11,000 रुपीज़ हमारे पास आए. तो आई विल ऐड, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ असेट्स. कितना है बेटा मेरे पास में? 11,000. 11. ठीक है, अब जो 11,000 आया तो मेरा टोटल कैश कितना बचा बेटा मेरे पास में? टोटल कैश कितना बचा मेरे पास में? 11,000. 11. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया टोटल कैश का 11,000. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेस किसको पे करेंगे बेटा हम? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? थर्ड पार्टनर को. यस, C को. सबसे पहले हम पे करेंगे, मैं रेड कर देता हूँ जिसको हम पे करेंगे. सबसे पहले हम पे करेंगे सी को. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस पेड टू मिस्टर सी. कितना पे कर रहे हैं हम उसको? कितना पे कर रहे हैं? 5,000. 5,000. यहाँ पे मैंने लिखा 5,000. बैलेंस कितना बचा है यहाँ पर अपने पास में? मेरे पास बैलेंस बचा टोटल 6,000. 6,000. और यहाँ पे इसका बैलेंस कितना बचा बेटा? 15,000. 15,000. ठीक है, अभी पैसा बचे, जब तक पैसा पूरा कंप्लीट नहीं हो हम बांटते रहेंगे. अब यहाँ पर आके देखिए सेकंड हमको किसको पे करना है बेटा? में देखो यहाँ पे अगर हमने जब 5 पे कर दिया तो मिस्टर सी का बैलेंस कितना बचा? 10,000 प्लस 5,000 कितना था? 15,000. ठीक है, उसी तरह 10,000 प्लस 10,000 कितना था? 20,000 इसका आ रहा था. ठीक है, अब देखो सेकंड हमको कितना पे करना है बेटा? अभी हमको पे करना है एज पर पी एस आर. एज पर पी एस आर तो हम किसको कितना पे करेंगे? देखो यहाँ पर सेकंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम पे करने की कोशिश करेंगे सेकंड टाइम में. इसको थोड़ा दूसरा कलर करते हैं हम. ठीक है, इसको हम ब्लू कलर करते हैं. ये सेकंड हम पे करेंगे. 15,000 टोटल पे करना है. 15,000 को पे होगा, बाद में हम कहाँ चलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल की तरफ. इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले रेड, ब्लू और ग्रीन. तो मेरे पास कितने पैसे बचे बेटा? ओनली 6,000. मुझे देने कितने बेटा? 10 प्लस 5 15,000. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेस paid to Mr. B and Mr. C. दोनों को मिला के कितना पे करना है मुझे? 15. 15,000. लेकिन मैं पैसे कितने बेटा? सिर्फ
6000। 6,000. तो जितने पैसे उतने पे करूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना आ गया, नील, 0। लेकिन 6000 कैसे पे करूंगा, इन देयर 3 to 1 प्रॉफिट शेयरिंग ratio. रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बेटा, 2:1। 2:1. कैसे पता लगा, यहाँ देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 2:1। तो 1. 6000 डिवाइड बाई 3 कम्स टू 2। तो बी को कितना पे करोगे बेटा आप, 4000। और इसको कितना पे करोगे, 4,000. 2000। 2,000. 4000 एंड 2000, 1,000. ठीक है। अभी यहाँ पर इसका हम क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इनका वैल्यू बचा आपके पास 26,000, इसका बचा आपका 17,000, ठीक है। अभी आई विल गो 13,000. फॉर सेकंड रियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 13 क्या बेटा, 13,000 ना, हाँ 13,000 13. सेकंड रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, कितना पैसा So मिला you सेकंड, Guys, 13,000. कितना बेटा, so ये ऐड करना है सेकंड रियलाइजेशन. सेकंड रियलाइजेशन ऐड करना बेटा, पैसा आएगा ना सेकंड रियलाइजेशन से, ओके. ठीक है। तो कितना पैसा है बेटा, लेट्स सी सेकंड रियलाइजेशन से कितना पैसा मिला आपको, 15,000। हाउ मच यू गॉट, हाउ मच यू गॉट, 15,000। सो हियर आई हैव टू राइट 15,000। तो मेरे पास टोटल कैश अवेलेबल कितना हो बेटा, 15,000, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि आपको कितना पैसा पे करना था, ग्रीन लाइन और येलो लाइन में देखो जरा, ब्लू लाइन में आपको टोटल पैसा कितना पे करना था, 15,000। आपने कितना पे किया, 6,000। 6. कितना बचा, 9,000 और पे करना है, ठीक है। तो पहले ये पे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस पेड टू मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। कितना पे करेंगे वापस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बचा कितना था दोनों का, इसका बचा था 6,000 और इसका बचा था 3,000, ठीक है। अब देखिए 6 + 4 कितना हो बेटा, 6 + 4 कितना हुआ? 10। हमको कितना देना था, इसके हिसाब से 10 देना था ना, हमने दे दिया, ठीक है। उसी तरह जब मैं कहूँ 3 + 2 कम्स टू 5, 5,000. I have to pay here 5,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको पे करने की कोशिश की है। Now what I will do, I will make an entire thing as a total। तो यहाँ पे जब मैंने पे कर दिया, मेरा बचा कितना बेटा, 20,000। यहाँ पे बचा मेरा 10,000, ठीक है। अब मैं ए का भी देख लेता हूँ, ए को मेरे को कितना पे करना है, 30,000। पैसा कितना बचा मेरे पास में, 6,000। अब आप देखिए ये तीनों चीज़ें देखिए, द बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी इज 30:20:10। क्या ये फर्स्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल जैसा है, लुक एट हियर, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज 30:20:10। It means we are on a right track, we are on a right track, यानी हम सही। after paying a second proportionate capital, if the balance of partners capital is equal to first proportionate capital, that means you have done a correct calculation। अगर नहीं आया तो this is a check point, you have to check where you went wrong। so now here I will pay less pay to all partners। पीसमिल का एक रूल होता है, जब तक आपके पैसे खत्म ना हो आप बांटते रहोगे। यू विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट रियलाइजेशन अनटिल अनलेस देयर इज अ कंप्लीट फिनिश ऑफ मनी। तो 6,000 पूरा मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, माइनस इनमें डिवाइड कर दूंगा तीनों में, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सो हियर इट विल कम 3,000, हियर इट विल कम 2,000 एंड हियर इट विल कम 2,000. 1,000, 1,000. ठीक है। I got a balance 0 in cash, here I got 27,000,
27. Here I got 18. 18,000 and finally I am getting 9,000. 9. 9,000. अभी लास्ट में मेरे को थर्ड रियलाइजेशन मिल रहा है, थर्ड रियलाइजेशन ऑफ असेट्स कितना मिला है? 24. 24,000. 24,000. So here I will write 24,000. ठीक है, मेरे को बैलेंस कितना बचा? 0 प्लस 24,000 24,000. ठीक है, अब ये 24,000 में क्या करूँगा? पेड टू ऑल पार्टनर्स. All partners. ठीक है, कितना पूरा पूरा दे दूंगा? 24,000. ठीक है, 24,000 डिवाइड बाय 6 एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हियर इट विल कम 12,000. 8,000 and 4,000. यहाँ पे कितना आएगा? 8,000. ऐसे 4,000. और यहाँ पे कितना आएगा? 4,000. सर 8,000 आएगा. 8,000. 8,000 एंड 4,000. ठीक है, नाउ लेट्स सी. आई डोंट हैव अ कैश विद मी. अभी कुछ कैश है नहीं, कुछ रियलाइजेशन भी होने वाला नहीं है. यहाँ पे कितना आया? 15,000 लॉस. यहाँ पे कितना है बेटा? 10,000 लॉस. और यहाँ पे कितना लॉस है बेटा? 5,000. 5,000. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन लॉस. ठीक है, ये आपका हो गया रियलाइजेशन लॉस. Loss. अब आप ये देखिए, आपका रियलाइजेशन लॉस एज पर PSR आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, ये सर क्या 3:1 नहीं आ रहा. 3:1 ही आ रहा है. बरोबर आ रहा है ना? तो हाँ. अल्टीमेट टारगेट ऑफ पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इज वेदर कंपनी मेक अ प्रॉफिट आफ्टर रियलाइजेशन और वेदर कंपनी मेक अ लॉस. इट शुड बी एज पर PSR. अगर प्रॉफिट होता तो PSR के हिसाब से होना चाहिए, लॉस हो तो PSR के हिसाब से होना चाहिए. सो हियर वी मेड अ लॉस एज पर PSR. इज इट ओके? Yes sir. Yes, ठीक sir. है, अभी आपके लिए मैंने एक अच्छा काम किया हुआ है. सेम प्रॉब्लम मैंने आपको PPT में भी दिया हुआ है, सेम सोल्यूशन. लुक एट हियर, हैव यू गॉट इट? यस सर. ठीक है, नाउ लेट्स सी. 15,000, 10,000 और 5,000. गॉट इट? तो जब ये PPT में आप लोग के साथ शेयर करूंगा तो आपको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन मिलेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गोइंग टू फॉलो अ डबल फार्मूला और डबल मेथड वेयर आई विल प्रोवाइड यू सॉल्व प्रॉब्लम एज वेल एज आई विल सॉल्व फॉर यू. तो दोनों काम में क्या था, आपको समझ में भी आएगा और आपके पास रहेगा भी मटेरियल. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विच यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. अब देखो इसके अंदर आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने करना क्या है. लुक एट हियर, the following is a balance sheet of XYZ who are sharing their profit and loss in the ratio of 5:3:2. ये इससे Sir, आपको क्या? screen is not proper. I cannot see the question properly. पूरा slant में चला गया है question. सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है. दिख रहा है. बेटा दिख रहा है. आपने चश्मा एडजस्ट नहीं किया होगा. ठीक है, चलो जोक अपार्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में बेटा देखो एक चीज नया दिया हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर. क्रेडिटर इज व्हाट बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी. Outside. एक्सटर्नल लायबिलिटी. External. XYZ का कैपिटल दिया हुआ है, किस काम में आएगा आपको? टू कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल. ठीक है, और यहाँ पर जितने भी आइटम है ना, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, ये किसी काम के नहीं है. ये किसी भी काम के नहीं है, ये सारे बिक जाएंगे. जब ये सारे बिक जाएंगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग? फॉर फर्स्ट रियलाइजेशन यू आर गेटिंग 60,000. फ्रॉम द सेकंड रियलाइजेशन यू आर गेटिंग 40,000. थर्ड से आपको कितना मिल रहा है? 96,000. और फोर्थ से कितना मिल रहा है बेटा? 1,04,000. 1,04,000. तो 4 बार आपको रियलाइज करना और चारों बांटना. सबसे पहले आप किसको दोगे बेटा? 1,00,000 रुपये क्रेडिटर को. Creditor को. ठीक है, उसके बाद में किसको दोगे? पार्टनर्स को एज पर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट. ठीक है, अभी एक बार जरा मैं इधर आ जाता हूँ. अभी यही शीट बनेगी. यहाँ पर क्या आएगा बेटा? सी की जगह पे क्या, एक जगह पे क्या आ जाएगा? पहले इंसर्ट. Creditor. सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? Creditor. क्रेडिटर्स. और एंड जैसे आप फर्स्ट रियलाइजेशन करोगे बेटा, फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का आ रहा है? 60,000. 60,000 पूरा पूरा किसको जाएगा बेटा? Creditor. क्रेडिटर्स. इसको
सेकेंड रिलेशन कितने का हो रहा है 40,000, पूरा पूरा किसको जाएगा, उसको Creditor. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जो लाइबिलिटी है उसको पे करने की कोशिश करेंगे। तो जब जैसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया 1 लाख का, उसके बाद हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को, एज पर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट, एज पर Excess capital statement. एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ट्राई बाय योरसेल्फ, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ।